for students of class 11. The name of the chapter is Ranga's Marriage and it is written by Masti Venkatesh Iyengar. In this video, I am going to cover about the author, chapter sketch and characters and detailed summary of the chapter. So, let's start with about the author, who is Masti Venkatesh Iyengar. Masti Venkatesh Iyengar, born on 6 June 1891 and died on 6 June 1986, was a well-known writer in Kannada language. He was the fourth among Kannada writers to be honored with the Gyanpith Award, the highest literary honor conferred in India. He was popularly referred to as Masti Kannada Asti, which means Masti is Kannada's treasure. He is most renowned for his short stories. He wrote under the name of Srinivasa. Now coming to the next point, which is chapter sketch and characters. The story Ranga's Marriage dates back to the early days of British rule, when life in villages was slow and child marriage was common. It very interestingly shows the manipulations done by the narrator to bring a change in the idealistic views of Ranga about marriage and gets him married to an 11-year-old girl, Ratna. Due to the narrator's meticulous planning with the village astrologer, Ranga ultimately gets married to Ratna, with whom he had fallen in love on first sight. एक गांव की कहानी है जब ब्रिटिश रूल हुआ करता था और उस समय चाइल्ड मैरिजेस कॉमन थे. स्टोरी कुछ इश्यूज राइज करती है चाइल्ड मैरिज को लेकर. किस तरह से नैरेटर रंगा और रत्ना की शादी करवाते हैं, ये इसमें बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है, कुछ ग्रामीण भाषा में कन्नड़ लैंग्वेज की. नाउ अबाउट द कैरेक्टर्स. 4 characters mainly. First one is Ranga. Ranga, the son of the accountant, gets educated outside his village at Bangalore, but he has not changed much when he returns, as he follows the traditional courteous behavior towards elders. However, Ranga's views about marriage are not traditional. The narrator's strategy succeeds in making him agree to the traditional arranged marriage. रंगा गांव के अकाउंटेंट का बेटा है जो बेंगलोर अपनी एजुकेशन पूरी करने के लिए जाता है और हायर एजुकेशन लेकर के वापस गांव आता है, लेकिन उसके संस्कार बिल्कुल वैसे ही हैं, नहीं बदले हैं. इसलिए नैरेटर उससे इम्प्रेस होते हैं और उसकी शादी कराने के बारे में सोचते हैं. श्यामा, who is the narrator here? He is Ranga's neighbor, other character of the story. He is impressed by Ranga's cultured behavior and plans a strategy. Takes the village astrologer into confidence and finally makes Ranga agree to marry a 11-year-old orphan Ratna. श्यामा, जो कि नैरेटर है, स्टोरी की कहानी सुना रहे हैं हमको, वो रंगा के विचारों से, उसके संस्कारों से, उसकी एजुकेशन से इम्प्रेस होते हैं और उसकी शादी प्लान करते हैं. गांव के एक पंडित हैं शास्त्री जी, उनके साथ मिलकर थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस में लेके एक प्लान तैयार करते हैं और एक अनाथ लड़की रत्ना से रंगा की शादी की प्लानिंग करते हैं. Ratna, she is 11-year-old orphan girl who is staying with her uncle Rama Rao. She is pretty and sings very sweetly. She also knew how to play the veena and the harmonium. She impresses Ranga so that he changes his views on marriage. Ratna 11 years old girl है जो कि अपने अंकल के साथ रहती है क्योंकि उसके माता पिता की डेथ हो चुकी है. अंकल रामा राव हैं और बहुत ही प्यारी लड़की है जिसको हारमोनियम और वीणा दोनों बजाने आता है. श्यामा, नैरेटर उससे इम्प्रेस हो गए थे और रंगा से भी, इसलिए दोनों को मिलवाने की सोचते हैं और वो रंगा को भी अपनी पहली मुलाकात में ही फर्स्ट साइट पे ही इम्प्रेस कर लेती है और उसके व्यूज चेंज हो जाते हैं शादी के लिए. शास्त्री, द एस्ट्रोलॉजर, एज आई टोल्ड यू, ही इज द विलेज एस्ट्रोलॉजर हु प्लेज हिज रोल to perfection as tutored by Shyama, but he does not want to be treated shabbily and tries to assert his knowledge of the Shastras when Shyama tried to make fun of him. शास्त्री गांव के पंडित हैं जिसके साथ श्यामा नैरेटर मिलकर प्लानिंग करते हैं और वो बहुत अच्छे से अपना रोल प्ले करता है रंगा के व्यू को चेंज करने में. नाउ द 4 characters I have explained you. Now I will give you detailed summary of the chapter.
not given any elaborate title to the present story like Ranganatha's Vivah or Jagannatha Vijay. The reason is that the story is about a common boy, Ranga, and his marriage. He is an accountant's son and native of village Hosahalli. स्टोरी की शुरुआत में नरेटर ये बताते हैं कि उन्होंने कोई बड़ा सा नाम क्यों नहीं रखा चैप्टर का, जैसे कि रंगनाथ का विवाह या जगन्नाथ की विजय, क्योंकि वो ऐसा नाम लेना चाहते थे जो लगे कि बिल्कुल गांव के कॉमन बॉय की कहानी है। इसीलिए उन्होंने चैप्टर का नाम रखा रंगाज मैरिज। रंगा गांव के अकाउंटेंट का लड़का है और होसाहल्ली गांव का रहने वाला है। The narrator mentions that this village is very small and it is not mentioned in geography books. अब नरेटर अपने गांव होसाहल्ली के बारे में बताते हैं कि ये गांव बहुत ही छोटा सा गांव है, इवन इतना छोटा है कि ज्योग्राफी के मैप्स में और बुक्स में इसका जिक्र तक नहीं है। Still he speaks highly about होसाहल्ली। तब भी वो अपने गांव की बहुत बढ़ चढ़कर वर्णन करते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि हालांकि इतना छोटा गांव है कि उसका कोई जिक्र नहीं है वर्ल्ड की ज्योग्राफी बुक्स में, लेकिन फिर भी मेरा गांव बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा है। Even the local doctor, Dr. Gunda Bhatt, who has visited many places outside India, finds it an impressive village. Local doctor, डॉक्टर गुंडा भट्ट के बारे में बताते हैं नरेटर, जो कि होसाहल्ली में ही रहते हैं और लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं। उनके बारे में बताते हैं कि डॉक्टर गुंडा भट्ट हालांकि विदेशों में भी जा चुके हैं, उन्होंने बहुत सारी जगहें विजिट की हुई है, लेकिन तब भी उनको अपना गाँव होसाहल्ली बहुत प्रिय है, बहुत अच्छा लगता है। The village is famous for its sour mangoes and creepers growing in the village pond. ये गांव अपने खट्टे आमों के लिए बहुत मशहूर है और विलेज पॉन्ड गांव के तालाब में उगने वाले क्रीपर्स के लिए। क्रीपर होते हैं जो जमीन के सहारे या पानी के सहारे पौधे उगते हैं। आपने पंपकिन का पौधा देखा होगा जो कि जमीन के सहारे उगता है, इसी तरह वहां पर एक क्रीपर उगता है जो पूरे विलेज पॉन्ड में छाया रहता है। The leaves of this creeper could serve as good plates for serving afternoon meals. इस क्रीपर की पत्तियां इतनी चौड़ी-चौड़ी होती हैं कि ये पत्तियां ये गांव के लोग अपना दोपहर का खाना सर्व करने के लिए यूज करते हैं, वो पत्तलों की तरह यूज की जाती हैं। But the narrator Shyama says the real appreciation of the village can be felt only if one visits it personally and gets acquainted with it. इतना बताने के बाद अब नरेटर श्यामा ये कहते हैं कि इतना कुछ मैंने बता दिया, बट जब कोई पर्सनली मेरा गांव देखने आएगा तब उसकी खूबसूरती को वो फील कर सकता है, जब कोई उससे परिचित होगा यहाँ आकर। श्यामा recalls an incident that happened 10 years ago. इसके बाद इस गांव में घटी 10 वर्ष पुरानी एक घटना को याद करते हैं। The village accountant was the first one to gather enough courage to send his son to Bangalore to study. गांव के अकाउंटेंट ने आज से 10 साल पहले ये हिम्मत की थी कि अपने बेटे को बैंगलोर में फर्दर स्टडीज के लिए, आगे पढ़ने के लिए भेजा था। Not many people knew English then. उस वक्त तो बहुत लोगों को इंग्लिश का मतलब ही नहीं मालूम था, नहीं जानते थे, they were not acquainted with it. That was why Ranga's homecoming was a great event. तो जब गांव के लोगों को ये पता चला था कि अकाउंटेंट का बेटा रंगा बैंगलोर गया है, वो इंग्लिश पढ़कर लौटेगा, तो जब वो घर आया, अपने गांव वापस आया पढ़ने लिखने के बाद, तो उसका घर आना एक बड़ी घटना बन गई थी गांव के लिए, because he knew English. A big crowd went to greet him. जब वो अपने घर वापस आया तो एक बड़ी भीड़ उसके घर पर लग गई थी, सब उसको मिलने, कॉन्ग्रेचुलेट करने और उसको देखने पहुंच गए थे वहां पर। The narrator rushed to see him. और गांव वासियों की तरह नरेटर श्यामा भी रंगा से मिलने उसके घर यानी अकाउंटेंट के घर पहुंच गए थे। Everyone was surprised to see that Ranga had not changed. सबको ये लग रहा था कि वो चूंकि बड़े शहर में पढ़ने गया था और इंग्लिश जान के लौटा है, बड़ी पढ़ाई लिखाई करके लौटा है, तो बहुत कुछ बदल गया होगा उसके स्वभाव में। लेकिन सबको जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि रंगा बिल्कुल भी नहीं बदला था। Once they realized that Ranga was unchanged, the crowd of people slowly disappeared. वो चेंज देखने गए थे गांववासी वहां पर कि रंगा पढ़ लिख कर आया है तो उसके अंदर क्या चेंजेस आ गए हैं। लेकिन जब उन्होंने ये जान लिया और देख लिया कि रंगा के व्यवहार में, रंगा के अपीयरेंस में कोई चेंज नहीं आया था, तो वो भीड़ वहां से गायब हो गई। Only the narrator continued to stand there,
केवल नैरेटर श्यामा वहां पर खड़े रहे। रंगा हैड अ स्माइल ऑन हिज फेस। रंगा के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। He still followed the rituals of his caste by respectfully touching the narrator's feet. अभी भी वो अपने कस्टम को, अपने रिचुअल्स को पूरी तरह, अपनी कास्ट के जो उसको संस्कार दिए गए थे, वो उसको पूरी तरह से फॉलो करता था, जिसके तहत उसने वहां पर खड़े नैरेटर के पांव छुए। The same afternoon, Ranga went to the narrator's house with a couple of oranges in his hand. उसी दोपहर को रंगा नैरेटर के घर पे गया और अपने हाथ में कुछ संतरे लेकर। The narrator thought that such a fine and generous boy should get married and settle down. उसको देखकर, उससे बातचीत कर कर नैरेटर को ऐसा फील हुआ कि ऐसे बढ़िया लड़की को शादी करके सेटल हो जाना चाहिए। अब वो पढ़ लिख के आ ही चुका है वापस, तो अब इसकी शादी हो जानी चाहिए। He inquired about his plan to get married. अब उसने, नैरेटर ने रंगा से बातचीत करनी शुरू की और उसके प्लानिंग के बारे में पूछा कि अब वो शादी करने के बारे में क्या सोचता है। रंगा said that he did not want to get married soon. रंगा ने ये बताया कि वो जल्दी शादी नहीं करना चाहता। He was searching for the right girl who was mature enough. वो एक ऐसी लड़की की तलाश में था जो मेच्योर हो, बड़ी समझदार हो। Secondly, he wanted to marry a girl he admired. दूसरी बात, वो एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जिसकी वो रिस्पेक्ट कर सके, जिसको एडमायर कर सके, पसंद कर सके। He was not in favor of the arranged marriages prevalent in society. जिस तरह की अरेंज मैरिजेस समाज में उस समय हुआ करती थी, वो उस तरह की मैरिज के पक्ष में नहीं था। Till he got a girl of his choice, he wanted to remain a bachelor. जब तक उसको उसकी पसंद की लड़की नहीं मिल जाती, वो कुंवारा ही रहना चाहता था, बैचलर ही रहना चाहता था। The narrator was distressed to learn about Ranga's views on marriage, but he made up his mind that very soon he would get Ranga married. रंगा के व्यूज सुनकर मैरिज के बारे में नैरेटर थोड़ा परेशान हो जाते हैं, लेकिन जल्दी ही वो डिसाइड करते हैं और सोच लेते हैं कि जल्दी ही वो रंगा के व्यूज चेंज करेंगे और उसकी शादी करवा देंगे। The narrator found the most suitable girl for him. और फिर उसके लिए suitable girl खोजने लगते हैं और जल्दी ही उनको मिल भी जाती है। It was Rama Rao's niece Ratna, a pretty girl of 11 who had come to stay with him after her parents died. रामा राव की भतीजी रत्ना, जो कि बड़ी प्यारी सी लड़की है, 11 years old, और वो रामा राव के साथ इससे रहती है, अपने अंकल के साथ, क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। She was from a big town, so she knew how to play the veena and the harmonium. चूँकि वो बड़े शहर की लड़की है, इसलिए वो जानती है कि वीणा और हारमोनियम कैसे बजाया जाता है। She also had a sweet voice. वो गाना भी बहुत अच्छा गाती है, उसकी आवाज़ बड़ी मीठी है। और चूँकि रत्ना बड़े शहर की लड़की है और रंगा भी शहर से पढ़कर आया है, इसलिए नैरेटर ये सोचते हैं कि इन दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी, ये एक दूसरे को समझ सकेंगे। The next morning, the narrator told Rama Rao's wife to send Ratna to his house to fetch some buttermilk. अगली सुबह नैरेटर रामा राव की वाइफ से ये कहकर आते हैं कि रत्ना को उनके घर पर भेज दे, कुछ बटर मिल्क के साथ, कुछ छाछ के साथ। रत्ना knew the narrator as he was a frequent visitor to Rama Rao's place. रत्ना नैरेटर को अच्छे से जानती थी, परिचित थी उनसे, क्योंकि नैरेटर का रामा राव के घर पर कंटिन्यूअस रेगुलर आना जाना था। तो रत्ना नैरेटर को अच्छे से जानती थी, तो उनको मालूम था नैरेटर को कि रत्ना उनके घर में आने में हिचकिचाहट नहीं करेगी। रत्ना केम टू द नैरेटर्स हाउस। रत्ना नैरेटर के घर पर आई। When रत्ना केम, he requested her to sing a song. जब रत्ना आई तो नैरेटर ने, चूंकि वो गाना गाती थी, नैरेटर ने उसको गाना गाने के लिए कहा। It was Friday, so she was wearing a sari. फ्राइडे का दिन था, शुक्रवार का, इसलिए रत्ना ने साड़ी पहनी हुई थी। Meanwhile, Ranga came to the narrator's house and stopped at the threshold. जिस वक्त रत्ना ने गाना गाना शुरू किया नैरेटर के कहने पर, उसी वक्त उसने रंगा को किसी से बुलवा भेजा था कि रंगा को बुला लाओ। और जब वो उसने गाना शुरू किया है रत्ना ने, उसी वक्त दरवाजे पर आकर रंगा खड़ा हो गया वहां पर। He did not want the singing to stop, but he was curious to see the singer. रत्ना की आवाज़ इतनी खूबसूरत थी कि वो चाहता नहीं था कि सिंगिंग रुके, गायकी रुके,
लेकिन वो सिंगर का चेहरा जरूर देखना चाहता था। He was enchanted by her and kept glancing at her. रत्ना की पीठ उसकी ओर थी, वो हारमोनियम बजाकर गा रही थी और वो एकदम मंत्रमुग्ध सा वहीं पर दरवाजे पर खड़ा उसको देखता रहा। After a while, रंगा asked about रत्ना. थोड़ी देर के बाद रंगा ने रत्ना के बारे में पूछा। The narrator quite cunningly told him that she was married a year ago. अब रंगा के मन की बात जानने के लिए नरेटर ने यहाँ पर थोड़ा सा झूठ बोला कि 1 साल पहले रत्ना की शादी हो गई थी। रंगा was extremely disappointed to hear this. अब चूंकि मन ही मन रंगा रत्ना को पसंद करने लगा था, तो अब वो ये बात सुनकर कि उसकी शादी 1 साल पहले हो चुकी है, वो थोड़ा सा निराश हो जाता है। The narrator noticed signs of disappointment on Ranga's face. और नरेटर यही देखना चाहता था कि रंगा को रत्ना की शादी के बारे में सुनकर कितनी निराशा होती है, और वो उसके चेहरे पर देख लेता है और समझ जाता है कि रंगा रत्ना को पसंद करने लगा था, तभी उसकी शादी के बारे में जानकर उसको निराशा हुई है। रंगा लेफ्ट आफ्टर सम टाइम। उसके बाद थोड़ी देर के बाद रंगा वहां से चला जाता है। The next morning, the narrator met the astrologer, better known as Shastri, and tutored him about his plan in Ranga's case. अगली सुबह नरेटर गांव के पंडित से जाकर मिलते हैं, जिनका नाम शास्त्री है गांव में, और उनको ट्यूटर करते हैं, मतलब सिखाते हैं कि रंगा के मामले को कैसे हैंडल करना, उसकी शादी कैसे करानी है। दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं। In the afternoon, the narrator met Ranga, who appeared as disturbed as he was yesterday. आफ्टरनून में पहले उन्होंने शास्त्री से मीटिंग करके प्लान बना लिया, अब आफ्टरनून में रंगा के घर पर गए रंगा से मिलने के लिए, जो कि कल की तरह ही उनको एकदम डिस्टर्ब दिखाई दे रहा था। जब उसने रत्ना के बारे में सुना था कि उसकी शादी हो चुकी है, तब से आज तक वो बिल्कुल डिस्टर्ब और परेशान सा दिख रहा था। The narrator suggested to meet Shastri and inquire about what was worrying him. नरेटर रंगा से कहते हैं तुम बहुत परेशान दिख रहे हो, आखिर क्या बात है? चलो चलकर गांव के ज्योतिषी शास्त्री जी से मिलते हैं, जो कि बताएंगे कि आखिर क्या बात है, कौन सी चिंता है जो तुम्हें खाई जा रही है और तुम्हारा चेहरा बिल्कुल उतर गया है। रंगा did not protest and went to meet Shastri with the narrator. रंगा कुछ नहीं कहता, चूंकि नरेटर काफी बड़े हैं उम्र में, अपने संस्कारों के कारण कुछ बोलता नहीं, बस नरेटर के साथ शास्त्री जी से मिलने चला जाता है। शास्त्री pretended surprise and spoke about meeting the narrator after a long time. शास्त्री सरप्राइज हो जाने का, बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाने का दिखावा करते हैं और कहते हैं अरे नरेटर से कि तुमसे श्यामा बहुत समय बाद मुलाकात हुई मेरी। The narrator almost ruined his own plan by saying that he had already met Shastri that very morning, but Shastri saved it by changing the sentence. नरेटर लगभग अपना पूरा प्लान खराब ही कर देता, क्योंकि उनके मुंह से ये निकल जाता है कि अरे आज ही सुबह तो आपसे मिले थे शास्त्री जी, लेकिन शास्त्री जी प्लान को संभाल लेते हैं और सेंटेंस को चेंज कर देते हैं। The narrator told Shastri that something was worrying poor Ranga and they had come to seek his help. नरेटर शास्त्री को बताते हैं कि कुछ ऐसी बात हुई है, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई घटना या कोई बात हुई है जो रंगा को परेशान कर रही है और हम इस मामले को सही करने के लिए आपकी मदद चाहते हैं। After making a pretense of some calculations, Shastri said that it was about a girl. कुछ कैलकुलेशंस का दिखावा करने के बाद शास्त्री बताते हैं कि किसी लड़की की बात है जो रंगा को परेशान कर रही है। To the narrator's questions as to who that girl was. अब नरेटर तुरंत पूछते हैं कि आखिर वो लड़की कौन है जिसकी वजह से रंगा की ऐसी हालत हो गई है। शास्त्री said that she had the name of something found in the ocean. कमल, moss, pearl और रत्न, the precious stone. शास्त्री कहते हैं कि कुछ ऐसा नाम है उस लड़की का जो कि समुद्री पानी में पाया जाता है, जैसे कमल, मॉस, पर्ल यानी मोती या कोई रत्न, कोई कीमती पत्थर, precious stone. The narrator's plan was bearing fruit. नरेटर का प्लान कामयाब होने लगा था। There was some surprise on Ranga's face and even some happiness. रंगा के चेहरे पर कुछ सरप्राइज के निशान थे और कुछ
हैप्पीनेस के साफ दिखाई दे रहा था। जब शास्त्री ने थोड़ा सा गोलमोल बातें करते हुए ये बताया कि ये किसी लड़की के बारे में परेशान है, उसके बारे में सोच रहा है जिसका नाम सी में पाए जाने वाली किसी चीज पर है, जैसे कि कमल या मॉस या मोती या रत्ना। ऑन देयर रिटर्न श्यामा पास्ड इन फ्रंट ऑफ रामाराव हाउस। अब जब नैरेटर रंगा को लेकर वापस लौट रहे थे तब वो रामाराव के घर के सामने से गुजरे। रत्ना वॉज स्टैंडिंग एट द डोर। रत्ना अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। द नैरेटर वेंट इनसाइड रामाराव हाउस एंड केम बैक अप अ लिटिल लेटर। नैरेटर रामाराव के घर के अंदर जाते हैं और थोड़ा टाइम लगाकर बाहर निकलते हैं। He had a surprised look on his face. और चेहरे पर कुछ बिल्कुल आश्चर्य के बिल्कुल भाव दिखाई दे रहे हैं। He told रंगा that there was some wrong information given to him. अब वो रंगा को ये बताते हैं कि उनके पास कुछ wrong information थी रत्ना के बारे में। रत्ना was not married. रत्ना married नहीं थी। He also inquired of रंगा whether that what शास्त्री had indicated was true. अब वो रंगा से इंक्वायरी यानी पूछताछ करते हैं उस विषय में कि क्या जो शास्त्री जी ने कहा था वो सही बात है। श्यामा आस्क्ड रंगा दैट ही इज थिंकिंग अबाउट रत्ना। श्यामा पूछते हैं रंगा से कि क्या वो वाकई रत्ना के बारे में सोच रहा था, रत्ना ही वो लड़की है जिसके बारे में वो परेशान था। रंगा एडमिटेड दैट व्हाटएवर शास्त्री सेड अबाउट द गर्ल वाज ट्रू। रंगा ये बात एडमिट करते हैं कि जो शास्त्री जी कह रहे थे उस गर्ल के बारे में, उस रत्ना के बारे में, वो बिल्कुल सही बात है। नाउ ही वांटेड टू गेट मैरिड टू रत्ना। वो एक्सेप्ट करता है, एडमिट करता है रंगा कि वो रत्ना को पसंद करने लगा था और अब वो उससे शादी करना चाहता है। फाइनली रंगा एंड रत्ना गॉट मैरिड। फाइनली रंगा और रत्ना की शादी हो जाती है। ऑल द आइडियलिज्म ऑफ रंगा वाज फॉरगॉटन एज ही वाज ट्रूली फैसिनेटेड बाय रत्ना's ब्यूटी एंड स्वीट वॉइस। रंगा के जितने व्यूज थे शादी के बारे में कि वो लेट शादी करना चाहता था, सब कुछ खत्म हो जाता है क्योंकि वो रंगा की ब्यूटी और उसकी आवाज से बहुत प्रभावित हो गया था और उसको पसंद करने लगा था। They named their first child Shyama as because of Shyama's the narrator efforts they had got married. जब उनका पहला बच्चा होता है तो वो उसका नाम श्यामा रखते हैं, नरेटर श्यामा के नाम पर, क्योंकि श्यामा ने ही उनकी शादी करवाई थी। Years later, Ranga invited the narrator for dinner on the occasion of his 3-year-old son's birthday. सालों बीत जाते हैं फिर और रंगा अपने 3 साल के बच्चे के बर्थडे पर श्यामा को इनवाइट करता है। The son was also named Shyama in honor of the narrator. क्योंकि रंगा और रत्ना की शादी श्यामा यानी कि नरेटर ने करवाई थी, इसलिए उनके ऑनर में, उनकी रिस्पेक्ट में दोनों ने अपने बच्चे का नाम श्यामा रखा। 10 रंगा वॉज लीडिंग अ हैप्पी मैरिड लाइफ विद रत्ना। और उन्होंने ही जोड़ी मिलाई थी और दोनों एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे थे और सब कुछ अच्छा था, इसलिए उन्होंने अपने बच्चे का नाम श्यामा नरेटर के नाम पर रख दिया। दिस वॉज द स्टोरी एंड नाउ आई विल टेल यू द वैल्यूज हाईलाइटेड इन दिस चैप्टर। द वैल्यूज हाईलाइटेड इन दिस चैप्टर, क्या बताया गया, आखिर ये स्टोरी आपको क्यों पढ़ाई गई, आखिर क्या वैल्यूज है इस चैप्टर की। Following cultural norms. The chapter highlights the value of following one's own cultural norms. As displayed by Ranga initially, Ranga, the son of an accountant, follows his cultural trends in spite of being educated in an English medium school outside his village. Ranga's views about marriage also highlight the value of getting married at the right age. अपने रिचुअल्स को मानना चाहिए, अपने ट्रेडिशन को मानना चाहिए, ये दिखाया गया है। जब रंगा नरेटर के पांव छूता है, हालांकि वो एक बड़े स्कूल से, बेंगलोर के बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ के आया है, लेकिन वो अपने संस्कार नहीं छोड़ता और जो भी उसको गांव में उसके पिता ने, माता ने, साथ के लोगों ने सिखाया था वो उनकी वैल्यू करता है। Hypocrisy of astrologers criticized. However, the insincerity of astrologers is shown here, thus displaying its hypocrisy. Here, Shastri was tutored by Shyama to tell Ranga what was required to convince him to marry Ratna. यहाँ पर ज्योतिषियों का थोड़ा सा मजाक उड़ाया गया है कि ज्योतिषियों को ऐसा कुछ आता नहीं, भविष्य के बारे में जानते नहीं वो, क्योंकि इस स्टोरी में जो एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिषी हैं शास्त्री जी,
उनको नरेटर श्यामा जैसा जैसा बताते हैं, बिल्कुल सिखाते हैं एक एक वर्ड कि आपको बोलना क्या है रत्ना और रंगा की शादी कराने के लिए, तो वो बिल्कुल वैसा ही बोलते हैं। और इसीलिए श्यामा नरेटर थोड़ा सा उनका मजाक उड़ाता है कि ज्योतिष शास्त्र कुछ है नहीं, मैंने तो जैसा बताया था आपको बस वैसा आपने बोल दिया, इसमें आपका क्या योगदान है। Concern of elders towards youngsters. The concern of elders towards the well-being of youngsters is also depicted through the character of Shyama, who was an elderly person. He was impressed by Ranga's behavior and wanted that Ranga should get married soon to the orphan girl who was talented. बड़े लोगों का जो व्यवहार है बच्चों के लिए, अपने यंगस्टर्स के लिए, वो इसमें दिखाया गया है। किस तरह से रंगा जब पढ़कर आता है इंग्लिश मीडियम स्कूल से और श्यामा को, नरेटर को उनकी चिंता होने लगती है कि अब इसको सेटल हो जाना चाहिए। वो उसके लिए एक रत्ना नाम की लड़की को ढूंढते हैं जो कि शहर की लड़की है और टैलेंटेड है। उनको दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है कि दोनों एक दूसरे को सूट करेंगे और साथ में खुश रहेंगे। तो इस तरह से श्यामा ने रंगा के विषय में चिंता की और उसकी शादी कराई। तो एल्डरली लोगों का, बड़े लोगों का बच्चों के प्रति जो कंसर्न है, जो चिंता है, वो साफ साफ दिखाई देती है। और दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर चिल्ड्रन। आई होप यू हैव लाइक्ड इट, एंजॉयड इट एंड अंडरस्टूड द होल चैप्टर। थैंक यू सो मच।